Good evening, friends. Today I will take a very important lecture about the understanding of the different medicines. Let's start with Lac Can. Short introduction of Lac Can. It is prepared from dog's milk, as we know that Lac Can is prepared from dog's milk. It is a sarcode. It has a marked action on female genital organs, mind, throat, connective tissues like muscles, bones, fat, and mucous membranes. Chiefly affecting left side, but some symptoms go from left to right to left again, like lachesis. Its chief physical PQRS is shining, glazed appearance of affected parts. Any pathology there is a in any pathology, if there is a shining glazed appearance of affected part, then we can give Lac Can. Hyperesthesia of skin and all parts indicates exaggeration. This is very important symptom for acute prescribing. Hyperesthesia of skin and all parts. Erratic dispersion of symptoms like hysteria. Similar to lachesis, pulsatilla, apis, Lac Can is very similar to and very close to the lachesis, pulsatilla, and apis in terms of physical as well as mental sphere. As per GNM understanding, if you are new to GNM, means German New Medicine, then please go through the basic understanding of the GNM. As we know, GNM tells that every organ is every disease is an end product of special biological significant program, and every organ is only affected when there is some conflict, biological conflict behind that organ in the psyche as well as in the life of the patient. So Lac Can has a special action on the genital organs, especially female genital organs. And in female genitalia, there is a biological conflict, is ugly conflict with male, procreation conflict, sexual conflict, and in the throat, according to GNM, throat has a morsel conflict. So when there is a throat is affected, then we have to understand or we have to view the life situations that is indicating the morsel conflict. And this is a very left, it is a left-sided remedy. So in Lac Can, there is some outgoing morsel, but it is also goes from left to right. Then it has also some ingoing morsel. Means outgoing means wants to throw out some morsel which is swallowed in, and in the right side there is one wants to swallow a morsel, but he cannot. So this is right side throat and left side throat and understanding of disease. And connective tissue, as we all know, that self-devolution conflict and mucous membrane has separation conflict. So these four major organs that is affecting by Lac Caninum, and its GNM understanding means its biological conflict for the affections of these parts. Now let us understand how these situations happens and how life is reacting. This is a circle of life. Each and every life has a two phenomena, subject and object. Subject is a, as we have understood, it is a subjective symptoms, objective symptoms.
But this is some difference between the subject and object of life. The subject is an individual itself, is in the center of the life. It is a personal unconsciousness, according to uh, Dr. Carl Jung. Personal unconsciousness or feeling that is operated by autonomous nervous system or lower brain. This is unconscious part of the subject. If person feels these type of feelings, this type of part of personal unconsciousness unknowingly he or she feels, and it is also operated by lower brain, or we can say autonomous nervous system. And after all the situations happens and already gone, then one cannot know what he feels, what he or she feels. And objective means environment. Yeah, means there is a environment surrounding the subject, and it is a personal consciousness. According to Carl Jung, it is a personal consciousness or perception of external environment. Uh, Means if I perceive my environment as my environment is full of animals, my environment is full of devils, my environment is full of snakes, then it is my personal conscious perception. Conscious, it is not a perception, but it is a false perception of the external environment. And I am looking the people like a like he is animal, like he is devil, he is snake, he is dog. So it is my personal uh, perception, false perception of my external environment. So each and every life has a two phenomena: subjective perception and objective perception. Life is not going forward without anyone. If there is only environment, then how environment affect which individual? And if there is only subjective, then how subject can know that what he feels? Environment environment creates environments doing the process, environment doing the process which subject feels. So there is a life is a manifestation of the both part, subjective as well as objective. Without and with both ये दोनों की सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव दोनों की एक मिश्र मिश्रण से ये लाइफ क्रिएट हो रही है. सिर्फ सब्जेक्ट, only subject cannot feel the, cannot know, cannot aware his unconscious part of the subject. So life is going through and through, and it creates the same situation up to that level, up to that level when subject aware about his unconscious part of the life. And when there is and the same moment, and that same moment when person sees his unconscious part, that situation that is creating, that creation gives feeling is stopped suddenly, miraculously, and subject is evolving his consciousness from unconscious to conscious. This is all we have a journey. So now we have in homeopathy we have a large number of medicines, but few medicines are proved at that level of consciousness and unconsciousness. And uh, gradually we will learn more remedies like this type of understanding. So if you want to notify each and every time, then
Please subscribe our channel and join with us. Thank you. So now let's move to the Lac Can. How Lac Can produces these type of diseases. How Lac Can produces affections of these type of organs of our body. So let's move. Divine spark of the Lac. Every remedy has some divine spark, or we can say natural traits or undiseased part of the life. Each and every remedy has some undiseased part. Like Lac Can has a mildness, sociability, yielding disposition. This is the its divine part, divine spark. This is non-diseased character. And when the disease happens, means when subject means Lac Can produces personal unconsciousness or feeling, then it sees his external environments, its external environment as something odd, or we can say falsely. It falsely perceives its external environment, and when this happens, then the life is creating some needs to support the subjective feeling, to minimize the subjective feeling, or we can say stop to stop the unconscious pattern of the life. So Lac Can developing need in defense is affection, desires, appreciation, desires, attention, desires, carried desires to be, company desire for, dependent at mercy of others. Means अगर वो लोग खुश रहेंगे तो मैं खुश हूँ. This what the meaning of dependent at mercy of others. कि दूसरों की खुशी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है. Light desire for, please desire to, wants mother's protection constantly. ये डिफेंस में Lac Can नीड प्रोड्यूस करता है लाइफ में. इसका भी हम यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए. So what is the core part of this subjective feeling of Lac Can? Central feeling is a consciousness of Lac Can individual implicates in and around, जो उसकी consciousness है वो किसके इर्द गिर्द रहती. Consciousness in and around that I am a dirty, I am a ugly, not looking good, fatty, dark skin, unattractive. But in इस कॉन्शियसनेस के इर्द गिर्द Lac Can फंसी हुई रहती है. Lac Can इंडिविजुअल इसमें फंसा हुआ रहता है कि भाई मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं डर्टी हूँ, मैं अगली हूँ. अब ये उसकी कॉर और वी कैन से सेंट्रल फीलिंग होती है, कॉर डिल्यूजन है. इसमें से जो डिल्यूजन निकलता है वो उसका कॉर डिल्यूजन. और उसका डिक्शनरी मीनिंग भी ऐसा ही है. अगर हम अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी से डॉग का मीनिंग निकालें, देन डॉग का मीनिंग क्या है? इज अ पर्सन हु इज अनअट्रैक्टिव और अनइम्पोर्टेंट. और उसी मीनिंग के साथ मैंने इसको समझा है कि भाई ये एक ऐसी दवाई है और जिसका सोर्स जिसमें से बनती है उसकी फीलिंग कैसी होती है, डॉग की फीलिंग कैसी है, उसके हिसाब से ही हम Lac Can को समझ सकते. फीमेल डॉग स्पेशल. और उस डिक्शनरी मीनिंग क्या है कि अनअट्रैक्टिव और अनइम्पोर्टेंट, अ पर्सन हु इज अनअट्रैक्टिव और अनइम्पोर्टेंट. और उसकी चीफ एक्शन है कि फीमेल जेनाइटेलिया. और उसकी बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी क्या है? अगली कॉन्फ्लिक्ट विथ मेल. अगलीनेस यहाँ पर भी है. सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट है, प्रोक्रिएशन कॉन्फ्लिक्ट है. यानी कि प्रोक्रिएशन यानी कि मेरी संतति का, बराबर, संतति के बारे में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो प्रोक्रिएशन कॉन्फ्लिक्ट नहीं जाता है. तो एक फीमेल डॉग को क्या रहता है कि बच्चे जब वो एक साथ बहुत सारे बच्चे को जन्म देते हैं तो उसमें से काफी कुछ बच्चे मर जाते हैं, उसको संभाल नहीं पाती है तो वो मर जाते हैं, बिकॉज ऑफ हिज एनवायरमेंट. और
और अदर अदर सिचुएशंस। और वो उसकी जब वो उस अवस्था में जब उसकी मिल्क में से जो दवाई बनाए, तो वो दवाई में कैसी फीलिंग आई हो, उस मिल्क में कैसी फीलिंग आई होगी, वही फीलिंग लैक कैन में छुपी हुई है। तो दिस इज द सेंट्रल, और यू कैन से उसमें से अगर हम डिल्यूजन निकाले तो क्या आता है? डिल्यूजन अगली ही इज, डिल्यूजन डर्टी ही इज, डिल्यूजन वर्थलेस इज, डिल्यूजन इज डिस्पाइस्ड, डिल्यूजन इज यूजलेस। 4 सेकंड, सबसे पहले 4 सेकंड आता है, 4 सेकंड फीलिंग आती है। 4 सेकंड फीलिंग से फिर लेक्केन की जो कॉन्शियसनेस है, लेक्केन की कॉन्शियसनेस और डाउन हो जाती है, और वी कैन से इन होम्योपैथिक लैंग्वेज लेक्केन का सोरा और डेवलप हो जाता है। डेवलप होके डेवलप होके डिल्यूजन अगली, डर्टी, वर्थलेस, डिस्पाइस्ड और यूजलेस में चला जाता है। तो उसकी जो पूरी लाइफ जर्नी होगी, जैसे अगर किसी की एक लेक्केन, सब लेक्केन की, हर एक लेग पेन का पेशेंट अलग अलग पिक्चर लेके आता है। तो समझ लो कि कोई एक लेग पेन का पेशेंट अगली लेके आया है, डिल्यूजन है, अगली में फंसा हुआ है, उसकी कॉन्शियसनेस वहां पर फंसी हुई है। तो तो उसकी जो पूरी जर्नी होगी, पीछे की और आगे की, पास्ट जनरेशन एज वेल एज प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन, इन सबकी लाइफ का जो सिचुएशंस देखेंगे, देन वी कैन एज फ्रॉम द बर्ड व्यू, ईगल व्यू से हम देख पाएंगे कि देर इज ऑल द सिचुएशंस क्रिएटिंग अगलीनेस इन द पेशेंट, फीलिंग अगली इन द पेशेंट। और जब वहां से ये फोर्स, पहले तो 4 सेकंड हुए, जैसे कि हम अभी की बात करें तो हम जैसे एज अ पेरेंट्स, जो अब मेरे उम्र के जो पेरेंट्स होंगे, अराउंड 35 to 40 ईयर्स के आसपास के जो पेरेंट्स होंगे, वो अपने बच्चे, उनके बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, और उनको वो कैसे ट्रीट करते हैं कि भाई तुझे ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ऐसा है वैसा है। तो बच्चा फील क्या करेगा कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट क्लेवर इनफ। तो पहले पहले वो जब पेरेंट्स इसको ऐसा बोलते हैं, तो उसके पहले बच्चे को क्या फीलिंग आती है कि भाई कोई मुझे केयर करने वाला नहीं। जब बच्चा ऐसा ऐसी माहौल फीलिंग में जाता है, तो वो ऐसा माहौल और बनते जाता है, ऐसे में दूसरा बच्चा आता है, तो फिर वो बच्चा और 4 सेकंड हो जाता है। और फिर धीरे धीरे वो जर्नी आगे बढ़ती है, बार बार उसको बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। इट इज क्रिएटिंग these टाइप ऑफ delusions, बराबर। वो फिर दूसरों के सामने खुद की इंटेलिजेंसी को क्या महसूस करेगा? आई एम नॉट लुकिंग गुड एट दैट लेवल, इन द इन द फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। देन he is creating I am dirty, ugly, or despised, or worthless, or useless। तो 4 सेकंड से लेकिन की जर्नी ऐसे चालू हुई, और लाइफ उसको और फॉल करवाती है, क्योंकि वो समझता नहीं है, वो अनकॉन्शियसली इन सब में पड़ा रहता है, तो लाइफ और फॉल करती है। और जब वो फॉल करती है, तो वो प्रोसेस में आता है डिल्यूजन फॉलिंग ही। Delusion falling is a process of falling from higher consciousness to the lower consciousness, higher position to the lower position, high financial to the lower financial. It is a act of process. तो डिल्यूजन फॉलिंग, और उस फॉलिंग के बाद पर्सन क्या फील करता है, अलग अलग सिचुएशन है। जैसे कोई वर्थलेस में है, डिस्पाइस्ड में है, यूजलेस में है, तो उसको क्या लगेगा कि भाई माय बॉडी पार्ट्स इज शॉर्ट, डिल्यूजन डिमिनिश्ड, बराबर। मैं पहले बड़ा था, अब छोटा हो गया। डिल्यूजन स्मॉलर, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, खुद को स्मॉलर फील करना। मेरे पास जो भी चीज आती है वो स्मॉलर आती है, मेरी इनकम लो है, मेरे रिलेशन स्मॉल है, मेरे पास एक या दो ही फ्रेंड है, बराबर।
दिस इज स्मॉलर थिंग्स, डिल्यूजन स्मॉलर। तो हम हमें ये समझना है कि जब कॉन्शियसनेस अगर वर्थलेस और डिस्पाइस की चली आ रही है, तो उसकी जो डेवलप शोरा होगी, वो डेवलप शोरा किस दिशा में जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि उसको इंसल्टेड फील होने लगे, बराबर। जैसे अगली डर्टी को इंसल्टेड फीलिंग ज्यादा होती है, वर्थलेस को भी इंसल्टेड फीलिंग होती है, डिस्पाइस्ड को भी इंसल्टेड फीलिंग। लेकिन क्या वो उस दिशा में जा रहा है? अगर वो उस दिशा में जाएगा तो फिर उसकी जर्नी उस हिसाब से हो जाएगी। वहां से सोरा एक इनक्रेडिबल डेवलपमेंट कर रहा है। जनरली अगर वर्थलेस या डिस्पाइस्ड को हम सोचे, तो हमें ये दिमाग में आता है कि इंसल्ट होगी, क्रिटिसिज्म होगा, पर डिस्पाइकेबल वर्ड्स होंगे, एब्यूजिव लैंग्वेज आएगी एनवायरमेंट से, तो ये सब होगा। लेकिन ये ये काफी समझने वाली बात है कि जब वर्थलेस में से पर बंदा स्मॉलर स्मॉलर में चला जाएगा, तो फिर वहां पर ये सब इंसल्टेड या फिर मर्डर्ड की फीलिंग उतनी नहीं आएगी। और जब अगली है और डर्टी है और उसमें से उसको लगता है कि भाई लोग मेरा इंसल्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं अगली, लोग मेरा इंसल्ट कर रहे हैं क्योंकि आई एम अ डिस्पाइस्ड पर्सन, आई एम अ डिस्पाइकेबल, बिकॉज आई एम यूजलेस। तो जब हम पीछे जाएंगे कि भाई तू स्मॉलर क्यों है, तो उसके पीछे हमें और डीपर बातें और डिल्यूजन लैक कैन के पता चलेंगे। वो है कि भाई वो वर्थलेस है, अगली है, डर्टी है। डिल्यूजन इंसल्टेड ही, डिल्यूजन विल बी बाइटन। बाइटन का मीनिंग कैसे कैसे लेना है ये डिल्यूजन को, कि लोग मुझे आके बोलेंगे, मुझे ताना मारेंगे। इट इज अ वन टाइप ऑफ बाइट, मेरे कैरेक्टर को बाइट करेंगे, बराबर। बाइटन का मीनिंग हम फिगरेटिव सेंस में इसको ऐसे समझ सकते। और वो बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो मर्डर्ड में चला जाएगा, सी इज लुक्ड डाउन अपॉन, मर्डर विल बी। और जब मर्डर हो जाएगा तो क्या पेशेंट को फील होगा, नोज डज नॉट बिलोंग टू हर, मेरा नोज है वो कट हो गई, बराबर। नोज, नोज समवन एल्स हैज, मेरा नोज है वो दूसरे के पास है, मेरे पास नहीं। तो ग्रेजुअली कॉन्शियसनेस ऐसे ऐसे डाउन हो रही है। और सोरा के मामले में देखे तो सोरा ऐसे इनक्रेडिबली डेवलप हो रहा है, और लाइफ फॉल होगी। इतने से भी वो जो अगली, डर्टी, वर्थलेस, डेस्पाइस या फिर यूजलेस की फीलिंग बार बार जागृत हो रही है, या फिर एनवायरनमेंट सुधर नहीं रहा है, ऐसा फील करने के बाद, डिफेंस करने के बाद भी एनवायरनमेंट ऐसा ही बदतर होते जा रहा है। क्यों बदतर होगा? क्योंकि नेचर, यूनिवर्स ट्राइज टू tries to aware the person or individual to see that from that type of situations, to see that they have these type of feeling inside them, ये उनके अंदर कंसील्ड है, हिडन है इंटीरियर में। वो फीलिंग को दिखाना चाहते हैं कि भाई तेरे अंदर ये फीलिंग है। और उस फीलिंग को बाहर लाने के का एक ही मात्र जरिया है, जरिया बचता है यूनिवर्स के पास, कि एक सिचुएशन ऐसी बनाए जिससे लाइफ फॉल होके कुछ और फीलिंग करे, और वहां से वो अपने आप को और डीपली समझ में आने लगे खुद को। तो वहां से और लाइफ फॉल होगी। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है, वो उस फीलिंग के माया में, फीलिंग की माया में फंस जाता है, थिंकिंग एंड फीलिंग के लूप में फंस जाता है। वो समझना है तो आपको डॉक्टर जो डिस्पेंजा की ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, वो बेहतरीन तरीके से आपको समझाएगी कि कैसे थिंकिंग एंड फीलिंग की लूप हमें उसी में रखता है, और सिचुएशन बार बार वैसी ही बनती जा रही। तो वहां से और लाइफ फॉल करेगी अगर यहाँ से वो समझा नहीं, या फिर उसकी सही होम्योपैथिक दवाई नहीं दी गई, सही एंटीसोरिक दवाई नहीं दी गई, तो फिर वो लाइफ और फॉल करेगी। चाहे
या फिर पेशेंट की खुद की लाइफ में, इंडिविजुअल की खुद की लाइफ में, या फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में लाइफ फॉल होके, यानी कि उसका सोरा डेवलप होके क्या आएगा? डिल्यूजन, आइडेंटिटी एरर्स ऑफ पर्सनल, delusion, clouds enveloped her, delusion, everything she said is a lie. तो ये उसके अब पहले था कि मेरी मैं यूजलेस हूँ, वर्थलेस हूँ, लेकिन कुछ आइडेंटिटी थी। अब वो आइडेंटिटी गई, उस उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बरो क्लाउड्स घिरे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा पूरे दुख से भरी जिंदगी है। एवरीथिंग शी सेड इज लाई, और मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी करता हूँ, वो गलत होता है। उसकी उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है यहाँ से खत्म हो रही है। और फिर लाइफ और उसको फॉल करेगी, तो वहां से फिर वो डाई में चली जाएगी कि डिल्यूजन डाई अबाउट, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। तो वहां से वो डाई कर दे। वो डाई जो होता है, वो वो क्या डाई होता है? ईगो की डाई होती है, डेथ होती है। और जब वो मरता है तो वो और नया स्वरूप धारण करता है, इन द फॉर्म ऑफ, और नया स्वरूप धारण करता है, टेक अ न्यू नेम ऑफ द ईगो। एंड in that consciousness, person either go into the spiritual consciousness, or again goes into the same cycle. But now person is goes into the more backward journey, like from human to animal, uh, bugs, insects, worms, vermin। तो यहाँ तक लाइफ पीछे चली जाती, पर कॉन्शियसनेस के मामले में और फॉल कर रही है। पर फॉलिंग से डाई करके जो अब नई कॉन्शियसनेस आएगी, वो कैसे आएगी? डिल्यूजन हावरिंग इन लाइक स्पिरिट, हावरिंग इन एयर लाइक स्पिरिट, यानी कि मैं तो हवा में तैर रहा हूँ। अब वो पर्सन अपनी अलग दुनिया रच रहा है, अब वो कॉन्शियसनेस अपनी अलग दुनिया में, उनको लग रहा है कि भाई अब तो मैं तैर रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मेरे पैर जमीन पे टिक नहीं रहे, मैं बेड पे सोया हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट लाइंग इन द बेड, बिकॉज आई एम सो so light that I am floating in the air. Delusion birds, delusion phantom seas, delusion horrible visions. Everything is horrible. ये ये सब में कॉन्शियसनेस चली जाएगी कि अब सब कुछ ये विजन, फैंटम फ्राइटफुल, फैंटम डिस्टॉर्टेड, ये डिल्यूजन आ जाते हैं उसको। या तो फिर वो अपने अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जज करने लगेगा, तो उसको लगेगा कि ये लोग एनिमल जैसे, डिल्यूजन एनिमल्स ऑफ, डिल्यूजन स्नैक्स, डिल्यूजन माइस, रेट्स, insect sees, delusion insect sees, bug sees, delusion has visions monster, ये लोग monster जैसे हैं, राक्षस जैसे। and delusion vermin crawl about seas। तो ये उसकी कॉन्शियसनेस है जो ऑल फोर करके यहाँ तक आ गई। और जब यहाँ तक आती है तो साथ साथ में फिजिकल बॉडी अफेक्ट होती है, और उसको क्या लगने लगता है कि डिल्यूजन हैज हार्ट डिजीज, डिल्यूजन हैज इनक्योरेबल डिजीज, डिल्यूजन वन विल बिकम इंसेंट। ये उसकी कॉन्शियसनेस के साथ फिजिकल बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, हमें ये यहाँ से ज्यादातर ये जो बॉडी के डिल्यूजन होते हैं, डिजीज के डिल्यूजन, उससे ज्यादा वो डिजीज का डिल्यूजन तो एंड प्रोडक्ट है, डिफेंस का पार्ट है। बॉडी ने डिफेंस किया हार्ट डिजीज प्रोड्यूस कर, तो वहां से नहीं उठाना है उसको, और डीपली समझना है कि भाई कैसे हार्ट डिजीज हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्या माहौल है कि हार्ट डिजीज हो गया। तो अगर पीछे की हिस्ट्री में जाए तो there is extreme domination, or or there is extreme workload, overburden from the monsters, from the horrible visions,
और क्यों ऐसा क्या हो, और वो मॉन्स्टर और हॉरिबल जो है, उन्होंने पेशेंट को क्या सब्जेक्टिव फीलिंग दी। तो तो वहां से पीछे की जर्नी में जाते जाएंगे तो हमें एक उसकी कॉर डिल्यूजन पता चले, एंड दैट इज डिल्यूजन ugly, dirty, worthless, despised, useless. This is the core central feeling of the Lac Can person. So, thank you. If you have any question, then please ask in the chat box or in this video. I will try to ask you shortly. So, thank you.